Hello friends, I am Ambrose. I have completed my graduation degree and today I have come with the first chapter of PSEB 12th class English book. Friends, any English book is generally divided into two sections. One is prose section and the second is poetry sections. Like the same, here this book has also been divided into two sections, prose sections and poetry sections. Friends, in poetry sections, there are 10 chapters, okay, and in prose sections, there are 11 chapters. And friends, if you are a student of 12th class in PSEB, Bihar School Examination Board, and you are going to appear in the examination 2023, then this video may be helpful for you. That's why I have started a series of English teaching for 12th class, and it should not be useful only for 12th class students. It may be helpful for those persons who are interested in the study of English language and literature. Friends, as I told you already that there are 11 chapters in prose section 12th class BSCB English. The name of first chapter is Indian Civilization and Culture, and the author of this chapter is Mahatma Gandhi, very well known persons, very noted persons. Mahatma Gandhi, who is also known as Mohandas Karamchand Gandhi. And the next chapter is Bharat is my home, and this chapter has been created by Dr. Zakir Hussain. And the third is A Pinch of Snuff, Manohar Malgokar. Fourth is I Have a Dream, and the author of this speech is Martin Luther King Jr. Next is Ideas That Have Helped Mankind, Bertrand Russell. The artist Siganoya, A Child is Born, Germaine Greer. How free is, how free is the press, Dorothy L. Sayers. The Earth Exhibits India Through Traveler's Eye, Pearl S. Buck. A Marriage Proposal, Anton Chekhov. As I have completed the names of all the chapters in prose sections, and now I am going further having poetry section, and in this section there are 10 chapters, and the name of the first chapter is Sweetest Love I Do Not Go, John Donne. Song of Myself, Walt Whitman. Now the Leaves Are Falling Fast, W. H. Auden. To Autumn or Ode to Autumn, John Keats. An Epitaph, Walter de la Mare. The Soldier, Rupert Brooke. Macavity the Mystery Cat, T.S. Eliot. Fire Him, Kekian Daruwala. What a name. Snake, D.H. Lawrence. My Grandmother's House, Kamala Das. Friends, as I have told you that this video is mainly important for those students who are going to appear in the examination, appear at the examination in 2023 for BSCB 12th class. Friends, the first chapter in the prose section is Indian Civilization and Culture, authored or created by Mahatma Gandhi. फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अब क्या करूँगा कि इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि तोड़ तोड़ करके हद तक जितना संभव हो सके सबसे अच्छे तरीके से मैं इसको आप सबों को और खुद को भी समझा पाऊँ. फ्रेंड्स,
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये जो शीर्षक है इसके रचनाकार का नाम है महात्मा गांधी, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं। भारत को आज़ादी दिलाने में इनकी महती भूमिका ने हम सबों को आश्चर्यचकित और हम सबों को आज आज़ाद किया है। मोहनदास करमचंद गांधी, पोस्ट में लिखा हुआ 1869-1948। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ और मरण 1948 ईस्वी में हुआ। जब भी आप किसी हिंदी या इंग्लिश भाषा के में किसी व्यक्ति के नाम के पहले देखते हैं दो वर्ष लिखा हुआ, शुरू में एक वर्ष और उसके बाद एक वर्ष, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1869 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म और 1948 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी का मरण हुआ। और अगर आप डेट की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी वॉज born on 2nd of October 1869 and he died on 30th of January 1948। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनकी मौत हो गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी बड़े ही लोकप्रियता से बापू के नाम से और फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से हमारे देश में प्रचलित हैं, जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वो एक राजनीतिज्ञ से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। लोगों को आज़ादी के लिए आध्यात्म का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ। दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ देश को आज़ादी दिलाने के लिए सत्य का प्रयोग किया एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। भारत को आज़ादी दिलाने में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा का अपने दो मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महती भूमिका निभाई। फ्रॉम 1915 टिल 1948, ये जो फ्रेज हुआ इसका मतलब हुआ कि 1915 से 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से 1948 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया कि भारतीय राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित करके रखा। कहा जा सकता है कि 1915 से 1948 ईस्वी तक अगर भारतीय राजनीति में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे प्रमुख चेहरा था तो वो थे गांधी जी। और दोस्तों, इतिहास में 1915 से 1948 तक के एरा को गांधीयन एरा, गांधी युग भी कहा जाता है। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से 1948 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया, पूरी भारतीय राजनीति का ध्रुव के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए रहे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक दुष्ट व्यक्ति नाथूराम गॉडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनके हाथों इनका असैसिनेशन हो गया। हिज ऑटोबायोग्राफी, हिज, फ्रेंड्स यहाँ पर गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है हिज ऑटोबायोग्राफी। उनके द्वारा जो खुद की जीवन कथा लिखी गई है उनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य का खुद के साथ प्रयोग और सत्य का मेरे साथ प्रयोग। दोस्तों, कंपटीशन में या बिहार बोर्ड की 12th क्लास के एग्जाम में भी यह बहुत बार आ चुका है। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। दोस्तों, यंग इंडिया नामक पत्रिका के लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे एंड स्पीचेस, और बहुत अवसरों पर उन्होंने भाषण दिया। दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। उन्होंने जो विभिन्न अवसरों पर भाषण दिया, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। इन्होंने जो विभिन्न अवसरों पर विदेश में और खुद के देश में भाषण दिया, उस भाषण ने इनको बड़े ही विचारक के रूप में, मानवतावादी के रूप में, बहुत बड़े विचार प्रस्तुत करने वाले एक नेता के रूप में इनको भारतीय समाज में और पूरी दुनिया में प्रचारित कर दिया। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, और दोस्तों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इसको नाम दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। एंड इन दिस
extract, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization. गांधी जी इस चैप्टर में बात करते हैं कि भारतीय सभ्यता का निर्माण का जो आधार है वह कितना मजबूत है और हमारे पूर्वजों ने भारतीय सभ्यता के निर्माण में किस प्रकार से मजबूत विचारों, मजबूत तत्वों का प्रयोग करके निर्माण किया है। सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। गांधी जी इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि कितनी मजबूती से हमारे पूर्वजों ने भारतीय सभ्यता को निर्मित किया है कि इतना ज़्यादा समय बीत चुका है, कई हजार वर्ष बीत चुके हैं, उसके बावजूद भारतीय सभ्यता खुद की संस्कृति के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी बहुत बड़े समयावधि के बावजूद भी अपने आधार पर, अपने जड़ पर खड़े हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी इस चैप्टर में जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन अर्थात पाश्चात्य सभ्यता का भी बात करते हैं। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. गांधी जी बताते हैं इस चैप्टर में कि भारतीय सभ्यता एक है और पाश्चात्य सभ्यता एक है, यूरोप की सभ्यता, जैसे हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की बराबरी कभी भी यूरोप की सभ्यता अर्थात पाश्चात्य सभ्यता नहीं कर सकती है या पश्चिमी देशों की सभ्यता नहीं कर सकती है। उन्होंने इसका जो सबसे प्रमुख कारण और दोनों सभ्यताओं के बीच जो सबसे प्रमुख अंतर बताया है वह यह है कि भारतीय सभ्यता मोरालिटी को, मनुष्य में नैतिकता को बढ़ावा देता है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता मनुष्य में भौतिकता, मेटेरियलिटी को बढ़ावा देता है। वो पाश्चात्य सभ्यता यह कहता है कि धन ही सब कुछ है, हमें आवश्यक रूप से धन कमाना चाहिए। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द चीफ डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देन यू कैन से दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, और इन अदर वेज यू कैन से दैट द चीफ डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड modern civilization that Indian civilization elevates morality while Western civilization elevates materiality. This is the main difference between Indian and Western civilizations. Friends, ये जो चैप्टर है ये टोटल कुल मिलाकर के 24 पैराग्राफ्स में बटे हुए हैं और आज मैं इसका पहला पैराग्राफ आप सबों के सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, चैप्टर का नाम मैंने बता दिया है, फिर से बोल रहा हूँ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हिंदी में आप कह सकते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति। रचनाकार का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। एम के गांधी भी इसे कहा जाता है। विद्यार्थी इससे घबराए नहीं कि एम के क्या होता है। एम के मीन्स मोहन के करमचंद जी फॉर गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। पहला जो पैराग्राफ है उसका पहला लाइन है कि आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी पहला वाक्य जो कहते हैं वह यह है कि मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस सभ्यता का निर्माण भारत ने किया है उस सभ्यता को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, उस सभ्यता की दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर सकता, उस सभ्यता को दुनिया में कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। दोस्तों, ये प्रत्येक लाइन, प्रत्येक बात गांधी जी के द्वारा कहा गया है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। और वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिन बीजों के द्वारा, जिन आधार के द्वारा, जिन तत्वों के द्वारा भारतीय सभ्यता का निर्माण किया है उनकी बराबरी तक भी कोई नहीं कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ द फराउस वाज ब्रोकन। गांधी जी कह रहे हैं कि समय के साथ दुनिया की कई सभ्यताएं नष्ट हो गई। जिस तरह से कि रोम बीत चुका, रोम वेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि रोम बीत गया यानी रोम गुजर गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ जो रोम की सभ्यता का हुआ। द माइट ऑफ द फराउस वाज ब्रोकन। फराउस जो थे, इजिप्ट के प्राचीन शासक को फराउस कहते हैं, उनका जो महत्व था, उनका जो शक्ति था वो नष्ट हो चुका। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज। जापान खुद की सभ्यता और संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता में लीन हो चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। और हमारा जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है
चाइना, उसके बारे में कुछ आप कुछ कह नहीं सकते कि वो खुद की सभ्यता और संस्कृति के साथ अपने देश को आगे चला रहे हैं या जीवन बिता रहे हैं या पाश्चात्य हो चुके। नथिंग कैन बी, इट इज नॉट क्रिस्टल क्लियर दैट इट हैज बीन वेस्टर्नाइज्ड और नॉट, क्लियर नहीं है समहाउ। हाँ, आगे कह रहा है कि बट इंडिया हैज स्टिल समहाउ और द अदर, लेकिन भारत कहीं न कहीं और किसी न किसी तरह से साउंड एट द फाउंडेशंस, भारत अभी भी अपने सभ्यता और संस्कृति के आधार पर सभ्यता और संस्कृति नामक वृक्ष के जड़ को अभी भी सूखने नहीं दिया है, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ अभी भी जीवित है। The people of Europe learn their lessons of the men of Greece और रोम। दोस्तों, यह कह रहा है कि दुनिया का अधिकांश देश जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कब्जे में आ रहा है, उनके रास्तों को अपना रहा है। गांधी जी बताते हैं कि यूरोप की जो सभ्यता है, यूरोप के जो लोग हैं, उन्होंने अपना साहित्य सीखा ग्रीस से। उन्होंने अपना साहित्य किसे सीखा? ग्रीस से और रोम से। या तो ग्रीस से सीखा या रोम से सीखा, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी। जबकि सत्य यह है कि वर्तमान समय में, या गांधी जी जब ये बता रहे थे उस समय में, ग्रीस खुद बर्बाद हो चुका है और रोम खुद बर्बाद हो चुका है। बर्बाद होने का मतलब ये नहीं कि वो मर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी सभ्यता और उनकी संस्कृति जो प्राचीन रूप से चली आ रही थी वो नष्ट हो चुकी है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. यूरोपियंस का कहना है कि हम जब ग्रीस से और रोम से सीख रहे थे या सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उनकी बुराइयों को, उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को हम अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे, और उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको हम क्या करेंगे? अपना लेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। तो दोस्तों, हमें क्या करना है? यूरोपियंस नहीं बनाना है, यूरोप की सभ्यता को नहीं अपनाना है, क्योंकि वो जिनसे सीखे वो तो रहे नहीं, वो नष्ट हो चुका है। तो हम उनसे क्यों सीखे जो नष्ट वाले से सीख रहा है? तो दोस्तों, इस तरह से हमारा पहला पैराग्राफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, वो खत्म होता है। दोस्तों, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या अगर आप अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को गांधी जी के विचारों के अनुसार जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल एम्ब्रोस अम्बेडकर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं एक सीरीज के रूप में 12th क्लास की सभी चैप्टर को पैराग्राफ वाइज और स्टैंडा वाइज पोएम्स यानी पोइट्री सेक्शंस को आप सबों के सामने प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।